باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب ہم صرف سادہ میں جو لاسٹ درس ہوا تھا وہ کیونکہ فعل کی بحث تمام ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں. کون اتنا ذہین اور ہوشیار اور سمجھدار ہے کہ جو پوری کتاب کا شروع سے بتا دے کہ کیا بات ہوئی تھی؟ لاسٹ الال کی بحث تھی. نہیں، شروع سے کتاب کی بات کر رہا ہوں. کیا بتایا تھا؟ بس یہی تو بات ہے کہ آپ لوگ آسان باتیں بھی ذہن میں نہیں رکھتے ہیں. یاد ہے شروع میں کیا بتایا تھا؟ کلمہ کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. اور حرف. بتایا تھا اسم وہ کلمہ ہے کہ جس کا معنی مستقل ہو جی اور زمانے پہ دلالت نہیں کرتا. فعل وہ کلمہ ہے کہ جس میں زمانہ بھی پایا جائے، معنی مستقل ہو اور جیسے کوئی نئی چیز آ گئی. حرف کے معنی مستقل نہیں ہوتے. علم صرف میں کیا بات بتائی تھی؟ نقطہ کیا بتایا تھا اس میں؟ نقطہ یہ بتایا تھا کہ اسم اور فعل کی بحث ہوتی ہے، حرف کی بحث نہیں ہوتی. علم صرف میں اسم اور فعل سے بحث ہوتی ہے، حرف سے نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ حرف ہمیشہ کی شکل صورت ثابت رہتی ہے، مبنی ہوتا ہے. اور علم صرف کے معنی کیا ہے؟ صرف یعنی بدلنا. علم صرف ہمیں ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈھالنا سکھاتا ہے. جب یہ بدلتا ہی نہیں ہے، ڈھلتا ہی نہیں ہے، تو علم صرف اس سے کیوں گفتگو کرے گا؟ لہٰذا علم صرف کلمے کی دو قسموں سے، اسم سے اور فعل سے گفتگو کرتا ہے. ہم نے پھر اس میں تیسرے درس میں آ کے اسم کی 6 تقسیمات گنائی تھی اور فعل کی 6 تقسیمات گنائی تھی. فعل کی جو 6 تقسیمات گنائی تھی وہ ہم نے ساری پڑھ لی. فعل یا لازم ہوتا ہے یا متعدی؟ فعل لازم ہوتا ہے یا متعدی؟ فعل معلوم ہوتا ہے یا مجہول ہوتا ہے؟ فعل معطل ہوتا ہے یا صحیح ہوتا ہے؟ فعل یا ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی ہوتا ہے؟ فعل مؤنث ہوتا ہے یا مذکر ہوتا ہے؟ نہیں وہ جمع ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے. ایک اور ہے نہیں صیغے کے اعتبار سے مثبت ہوتا ہے یا منفی؟ صیغے کے اعتبار سے ماضی ہوتا ہے، مضارع ہوتا ہے، امر ہوتا ہے. 2 4 6 مثبت مفرد تثنیہ جمع اس میں نہیں ہوتا. صیغے کے اعتبار سے یہ ہو گیا، سمجھے؟ 6 تقسیمات ہی نہیں. فعل لازم وہ فعل ہے کہ جو فاعل پہ تمام ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ پڑے. متعدی جو فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہیے. فعل معلوم اور فعل مجہول. فعل معلوم وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو. فضا اور سکینہ آپ نہیں بول رہی؟ آغا اعلال اور وہ معطل اور صحیح نہیں. معلوم اور مجہول. معلوم وہ فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو اور مفعول ذکر ہو. اور مجہول وہ جس فعل میں جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو بلکہ مفعول کو فاعل کی جگہ رکھ کر فاعل کا اعراب اسے دے دیتے ہیں، اسی کو نائب فاعل کہتے ہیں. پھر فعل یا معطل ہوتا ہے یا صحیح ہوتا ہے. فعل معطل جس کے حروف اصلی میں حرف حروف علت ہو معطل. ہوتا ہے صحیح جس میں حرف علت اس کے حرف اصلی کی جگہ نہ ہو. پھر معطل کی 3 تقسیمات کے کئی تقسیمات گنائی تھی، مثال، اجوف، ناقص، لفظی. ایسے ہی صحیح کی 2 قسمیں بتائی تھی. صحیح یا جو ہوتا ہے یا سالم ہوتا ہے یا غیر سالم. غیر سالم یا مضاعف ہوتا ہے یا محموز ہوتا ہے. پھر ثلاثی رباعی آپ کو معلوم ہی ہے، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید. تو سارے باب پڑھے تھے. ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں: فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل اور فعول یفعل. 6 باب ثلاثی مجرد کے. ثلاثی مزید کے 10 تھے: افعال، تفعیل، مفعلہ، افتعال. سکینہ نہیں بول رہی، ساتھ بھی نہیں دینا ہی یہ لوگ تو. افعال، تفعیل، مفعلہ، افتعال، انفعال وغیرہ. ثلاثی رباعی مجرد کا رباعی مجرد کا 1 باب تھا، رباعی مزید کے 2 باب تھے.
ये पढ़ा था फेल या मुस्बत होता है या منفی ہوتا ہے. मुस्बत यानी जिसमें किसी चीज को साबित किया जाए, मनफी जिसमें नफी की जाए. सीखे के एतबार से माजी होता है, मुजारिया में वो सब. तरतीब मैंने उल्टी सीधी कर दी है, ये किताब के अलग वैसे 6 गिना दिए جی. तो ये सब तमाम हो गई. ابھی 6 तमाम हो गई. किसकी तमाम آغا हुई؟ مورب اور فعل کی. مبنی نہیں مورب مبنی اس کی قسم نہیں ہے. وہ فعل فعل کی. لہو میں چلی گئی. آپ ٹھیک ہے. فعل کی 6 تقسیمات علم صرف میں ہم نے پڑھ لی. پڑھ لی. جب ہم نے علم صرف میں 6 تقسیمات پڑھ لی فعل کی قسمیں، تو فعل کا تجزیہ بتائیں گے. یعنی فعل کی بحث علم صرف میں کلمے کی 2 قسموں سے بحث ہوتی ہے، فعل سے اور اسم سے. فعل تمام ہوا تو فعل کے بعد اس کا تجزیہ کرنا سکھائیں گے، پھر اسم کی بحث شروع ہو جائے گی. آخر میں پھر اسم کا تجزیہ کرنا سکھا دیں گے کہ اسم کو کیسے تجزیہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تمام ہوئی تھی. سمجھ گئے آپ کیا بات ہے؟ شروع سے کیسے ملایا پوری کتاب کو؟ جی آؤ. ایسے ہی یاد کرو. ٹھیک ہے. اب فعل کی تقسیم جب تمام ہو گئی، جو 6 تقسیمات گنائی تھی ان کی بحث پوری ہو گئی، تو اب بات آتی ہے تجزیے کی. تجزیے کے لغت میں معنی کیا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے کرنا. تجزیہ یعنی جز کرنا. جز کرنا. کیسے جز کرتے ہیں؟ اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ آپ آپریشن کرتے ہیں، کبھی یہ نکال کے یہ لگایا، کبھی یوں کر کے یوں کیا، یہ اس سے مل کے بنایا. آواز نہیں آ رہی ہے آغا. سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں ہمارے، مجھے آپ کو نہیں آ رہے؟ آئی آغا. آپ نے دیکھا ہوگا جو وہ ہوتے ہیں نا، کون ہوتے ہیں وہ لیب میں جو رہتے ہیں، سائنٹسٹ ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں ریسرچ کرنے والے. وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو اس میں ڈال کے یہ کس چیز سے مل کے بنا ہے، اس کو یوں نکال کے کیا یہی کرتے ہیں. چلے آغا. تو جب ہم نے فعل کی بحث پڑھی تو فعل کا بھی تو ایک تجزیہ ہوتا ہے. جی جعلنا. تو یہ تجزیہ جو انہوں نے سکھایا ہے، وہ یہ تجزیے کا مطلب ہے کیا کرنا. کیا کرنا تجزیے میں؟ پہلے تو یہ بتانا ہے کہ فعل ہے، اسم ہے. اسم ہے تو اسم والا تجزیہ ہوگا، فعل ہے تو فعل والا. مثال کے طور پر یہ فعل ہے، یہ بتانا ہے. پہلے تو کیا بتانا ہے؟ اس کی نوعیت بتانی ہے کہ یہ کون سی نوع ہے. فعل ہے. فعل ہے تو کون سا فعل ہے؟ فعل ہے تو کون سا فعل ہے؟ ماضی، مضارع، امر. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ جی. اور ماضی ہے تو کون سا صیغہ ہے؟ یا صیغے کا الگ ہے؟ نہیں. چلیے نو بتانی ہوتی ہے پہلے سے، اس میں دوسرے میں صیغہ بتانا ہوتا ہے. اس میں یہ بتانا ہے اس کا صیغہ کیا ہے. صیغہ ہے کون سا صیغہ؟ یہ کون سا جعلنا 14واں صیغہ ہے، یعنی جمع متکلم ہے. جمع متکلم. پھر اس کا باب بتانا ہوتا ہے. باب کون سا ہے اس کا؟ جعل یجعل، فعل یفعل، فعل یفعل. اور اگر یہی کوئی ہوتا ریشہ ہے، ثلاثی مزید کا ہوتا یا رباعی مجرد یا مزید کا ہوتا تو اس کا باب لکھنا. مثلا باب افعال ہے، باب تفعیل ہے، باب مفعلہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد لکھنا ہوتا ہے کیا؟ ریشے. ریشہ یعنی جڑ. ریشہ یعنی جڑ یعنی حروف اصلی. حروف اصلی کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ آپ اسے ملا کے مت لکھنا. الگ الگ لکھنا ہے پورا. ریشہ یا حروف اصلی کسی چیز کے بتانے ہو تو نہ تو اعراب دینا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی خاص شکل میں اسے ڈھالا جاتا ہے، بلکہ ایسے لکھا جاتا ہے جیم عین لام. سمجھ رہے ہیں ریشہ لکھنے کا طریقہ؟ غنچہ فاطمہ میں سکینے. جی آغا. فضا. جی آغا. فضا. فضا. جی فضا آ رہی ہے آواز؟ جی آگا آ رہی ہے. یہاں بہت آواز ہو رہی تھی اس لیے مائک. ریشہ جب کبھی لکھا جاتا ہے تو ایسے لکھا جاتا ہے الگ الگ حروف کر کے. انہیں ملا کے مت لکھنا کبھی، نہ کوئی حرکت دینا. جب بھی کسی کلمے کا ریشہ لکھنا ہو تو حرف کو، حروف کو الگ الگ کر کے لکھنا. ریشہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 1 2 3 4. ریشے کے بعد
बताना है कि फेल सही है या सही है, मुअत्तल। सही है, सही और सही, मुअत्तल बताना होता है। सही अब है, जाहिर सी बात है, आप अगर बताएं कि ये मिसाल के तौर पर ये सही है, सही है तो सही की भी तो किस्में होती हैं। सही सालिम, सही है, सही में सही की दो किस्में सालिम और गैर सालिम। सालिम है या गैर सालिम? सालिम, सालिम। और अगर ये गैर सालिम होता तो बताते मुज़ाफ है या महमूज। दो जी, तरह का होता है, या तो मुज़ाफ हो गया, महमूज तो बताना महमूद, होता कोई मुज़ाफ है, या महमूज होता तो बताना होता महमूज है। महमूज है तो कौन सा महमूज है? महमूजुल फा, महमूजुल ऐन, महमूजुल लाम है। और अगर मुअत्तल होता तो क्या कहते हैं? मुअत्तल की किस्में बताते। कौन सा मुअत्तल जी, है ये? मुअत्तल मिसाल है, इन्ना अजवफ है, मिसाल ना है, अजवफ है, नाकिस है, नाकिस है, मफरूक है, लतीफ है, मफरूक, मफरूक है, मकरून है। समझ गए इसमें कितनी चीज आ जाएगी? इसे जी एक आगा, जाहिरन एक ही खाना है ये, जाहिरन एक ही खाना है एक, ये, लेकिन इसमें कितने हैं? आपको सही और मुअत्तल बताना है। सही है तो सही की किस्में में से कौन सा सही है? सही है तो सालिम है या गैर सालिम? गैर सालिम, गैर सालिम है तो मुज़ाफ है या महमूज? मुअत्तल है तो महमूज अगर है तो महमूजुल फा है, महमूजुल ऐन है, महमूजुल लाम है। और अगर मुअत्तल है तो कौन सा मुअत्तल है? ठीक है, जी, ये जी सब आगा, बताना होता है। कितनी चीजें हो गई? 1 2 3 4 5 सही और मुअत्तल। उसके बाद क्या बताते हैं? लाजिम और मुताद्दी। लाजिम और मुताद्दी। अब ये बताना होता है कि ये फेल लाजिम है या, ये बात फेल की चल रही है तज्जिए की, इस्म का इसमें अभी कोई दखल नहीं, इस्म का आखिर लाजिम हो मुताद्दी, अब बताओ जालना लाजिम है या मुताद्दी? मुताद्दी है, मुताद्दी है, मुताद्दी है यानी इसमें उसे फाइल के साथ मफूल की जरूरत होती है। ठीक है, मुताद्दी। और इसके बाद उसके बाद मालूम क्या है, है? मालूम है, या मजहूल? मजहूल है, मालूम है है, या मजहूल? फिजा आपको आवाज आ रही है? जी आगा आ रही है। मालूम हो मजहूल। आपको ये बताना होता है कि मालूम है फेल यहाँ इसमें, यहाँ या मजहूल? मालूम है, मालूम है, ये वाला फेल मालूम है। लेकिन अगर मजहूल होता तो क्या कहते हैं? मजहूल है। मालूम है या मजहूल? ठीक है, ये मालूम है। और फिर उसके आखिर बाद क्या आता है? तर्जुमा। तर्जुमा हमने करार दिया, हमने करार। कितनी चीजें अहम हो गई इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें अहम हैं। वैसे खाने 10 बनाए हैं इन्होंने। दो खाने क्या है? आयत है या हदीस, कौन सी आयत है, कौन सा सूरा है। ठीक है, कौन सी आयत है और कौन सा सूरा है। खुद एक खाने में ये खुद ये लिखा हुआ है, खुद ये लिखा। तो 9 खाने तो हमने भी लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस कौन सी आयत कौन सा सूरा है वो नहीं। तो ये किसी भी चीज में, अब जाहिर सी बात है कि वो तो ये तो खुद ब खुद लिखा ही जाएगा। जब आपसे कोई पूछेगा वो तो बोल ही देगा कि इसका तज्जिया करो। आयत सूरा की तो इतना अहम नहीं है कि आदमी, वो तो सामने वाला भी सवाल नहीं करेगा कि इतना बड़ा कौन हाफिज है कि जो छोटा सा एक लफ्ज एक फेल को बता दे कौन सी आयत में। जी जी, लिहाजा किसी भी सकीना, फिजा, चराग, साजिद, कोई भी फेल अगर आपके सामने आ जाए तो उसका आपसे कहा जाए तज्जिया करो, तो ये चीजें बतानी होगी। तज्जिया यानी जिसकी टुकड़े टुकड़े करना, जूस जूस करना है कि ये जानना कौन सा फेल है। माजी है, माजी है, मुजारे है, अम्र है। माजी है तो कौन सा है, मुजारे है या अम्र है तो फिर कौन सा सीगा है, कौन सा सीगा है, चौथा सीगा है। नाम क्या है सीगे का? जमा बाब। ठीक है, फिर बाब बताना है कौन सा बाब है। सुलासी मुजर्रद है तो फ़अला यफ़अलु फ़अला यफ़अलु इनमें से होगा। सुलासी मजीद के आपको याद ही है, फ़अल तफ़ील मुफ़अला इनमें से होगा। और बाकी रुबाई जरूर। रीशा बताना है कि हुरूफ असली क्या है इसके, किस चीज से मिलके बना है। जी असली हुरूफ क्या है? जी है। फिर ये बताना है कि फेल सही है या मुअत्तल। सही है तो कौन सा सही? सालिम या गैर सालिम, और गैर सालिम है तो मुज़ाफ या महमूद। महमूद है तो कौन सा? महमूद, महमूदुल फा, महमूदुल ऐन, महमूद। और अगर मुअत्तल है तो फिर मुअत्तल की कौन सी किस्म है। फिर ये बताना है कि फेल लाजिम है या मुताद्दी, ये वाला फेल तो मुताद्दी है। और अगर कोई लाजिम आता तो लाजिम लिखा जाता उसके बाद।
और फिर ये मालूम है या मजहूल मालूम। ठीक है। और फिर तर्जुमा, किसी भी फेल आपके सामने कोई सा भी आ जाए उसका तज्जिया करने को कहा जाए तो ये 8-9 चीजें सबसे अहम है, ये सिखाया था। ठीक है, समझ गई फिजा, सकीना, साजिद? जी आगा। अब कोई ये वर्ड नया तो नहीं है आपके लिए, तज्जिया? नहीं। आप खुद से कुरान जब पढ़ें, आपको कोई फेल नजर आए तो आप कोशिश करना तज्जिया करने की। कुरान में कोई फेल आए तो आप बैठकर खुद से अब आप ये जो है ना, ये मत करना कि यार ये बस मुझे कुरान पढ़ते पढ़ते तज्जिया करना, ये फेल आया मुझे इसका तज्जिया करना। तो आप एक पर्चा उठाओ, देखो मैंने 8 मोरिद कौन कौन से हैं, इन मोरिद को ज़बानी याद कर लो, जहन में बिठा लीजिए, जहन में बिठा लीजिए। कैसे? देखिए अभी मैं बता रहा हूं आपको। नादा, नादा मैं बताऊंगा, देखिए आप। फेले माजी, पहले फेल बताना है, फेले माजी जी, नादा फेले माजी, सीगा चौदवा सीगा जी, नादा युनादी, नहीं पहला सीगा है, पहला सीगा है, वाहिद, वाहिद मुज़क्कर गायब। सीगा बता दिया, फेल बता दिया, सीगा बता दिया। ठीक है, फेल बता दिया, सीगा बता दिया, अब बाब बताना है। नादा युनादी, फाअला, नादया युनादियो था, फाअला युफाइलो, फाअला युफाइलो, मुफाअला, बाबे मुफाअला। बाब बता दिया। हुरूफ असली क्या है? हुरूफ असली नून दाल ये, नून दाल ये, समझ रहे हैं नहीं? जी। अब ये बताना है कितने हो गए, 1 2 3 4, सही है या मोहताज? बताइए। नादा, नादया मोतल है नहीं जी, मोतल है। मोतल है, कौन सा मोतल है? नाक़िस याई, नाक़िस याई, नाक़िस याई। भाई जब तो यानी से बदला कायदे के तहत नादया था, फाअला नादया, मोतल है, नाक़िस याई है। फिर जी लाजिम है या मुताद्दी? नादा ज़ैदुन अमरन, मुताद्दी है, अब उसको उसने वो किया, मुताद्दी है। फिर ये बताना है मालूम है या मजहूल? मालूम है, क्योंकि पहले माजी आपको मालूम है ज़म्मा होता है, नूदिया होना चाहिए था, नूदिया, फूइला, नूदिया, इज़ा नूदिया लिस्सलात, वो होता मजहूल। ये नादया फाअला, फाअला युफाइलु मुफाअला, क्या है ये? मालूम है। मजहूल के लिए तो आपको मालूम है, मजहूल करने का तरीका माजी को क्या है? माँ कबल आखिर को कसरा दे दीजिए, उससे पहले जितने हर्फ पे हरकत है उसे जम्मा दे दीजिए। अब अगर इसे कसरा दे देंगे और इसे जम्मा दे देंगे, आपको याद है कि अलिफ जो है वाव से बदल जाएगा, नूदिया, क्योंकि जम्मे की वजह से। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये मालूम है। फिर उसके बाद जी लाजिम, मुताद्दी, मालूम, मजहूल, तर्जुमा। 1 2 3 4 5 6 7 और तर्जुमा। तर्जुमा क्या है? नादा, आवाज दी, अस्मा पे आ गई, आवाज दी, नादा उसने निदा दी, आवाज दी, उसे एक मर्द ने आवाज दी। कितने मोरिद हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे हो गए नहीं? मैंने पर्चा तो नहीं देखा कि मुझे पहले नंबर पे क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या करना है, तीसरे नंबर पे क्या करना है। और एक टेम्पो ऊपर नीचे भी हो जाए तो चल जाता है। आप ऐसे कह दीजिए नादा फेले माजी, सीगा नंबर ये, बा मुफाला, हुरूफ असली ये, मालूम है ये पहले गिना दीजिए। ये तो तरतीब याद हो ही जाती है। हालांकि इतना वो पहले फेल बताओ कौन सा है, फेल है तो उसका सीगा क्या है, सीगा है तो बाब क्या है, बाब है तो हुरूफ असली क्या है,
मोतल है या सही, मोतल है तो लाजिम है या मुताद्दी, मालूम है या मजहूल, और तर्जुमा। कितना आसान है। अस्मा, अस्मा ठीक है आप। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। नहीं आ रही हैं आप क्लास में? जी वो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी ना, इसलिए नहीं आ रहे थे। तो क्या हुआ है? एलर्जी डॉक्टर ने बताया है। चलिए अल्लाह शिफा दे। तो समझे तज्जिया करने का सकीना, अस्मा, फिजा? जी आगा। अच्छा, मसलन मिसाल देता हूं आपको दूसरे उसके बाद उसका। हो अस्बाहो, बताइए कौन सा फेल है? फेले मुजारे। फेले मुजारे, फेले मुजारे है। अस्बाहो फिर फेल है, सीगा कौन सा है? अस्बाहो नस्बाहो, 13वां सीगा है। वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद। 4-5 फेल पे प्रैक्टिस कर लो, तरतीब याद हो जाएगी। फेल कौन सा है? फेल कौन सा है तो सीगा कौन सा है? सीगा कौन सा है तो बाब कौन सा है? ज़बह यज़बहु, फ़अला यफ़अलु, ज़बह यज़बहु, फ़अला यफ़अलु, ज़बह यज़बहु, फ़अला यफ़अलु। बाब, ये हुरूफ असली क्या है? हुरूफ असली ज़ाल बे हे, ज़ाल बे हे, ज़ाब हुरूफ असली है। कितनी हो गई? 1 2 3 4 चीजें हो गई। अब बता रहे हैं क्या सही है या मुअत्तल। सही है। क्यों सही है? ज़ाल पे है, हुरूफ असली में हर्फ इल्लत नहीं है। सही में भी कौन सा सही है? ये सालिम है। ये ना तो मुज़ाअफ है ना महमूज है। कभी आपको या लिखा है तो महमूज है। तो वाहिद सीगे का अलिफ आ गया तो मुअत्तल नहीं है। ये अलिफ 13वें सीगे का है, अलामत मुज़ारे है अलिफ ता या नून। मबनी है ये। नहीं मबनी कहाँ से आ गई ये बात? अगर ये अलिफ को नहीं, ये अलिफ अलामत मुज़ारे है जो मुज़ारे बनाने के लिए लगाई जाती है। कहीं पे या लगती है, कहीं ता। यज़हबो, यज़बहु या लगती है, तज़बहु में ता लगती है, अज़बहु 13वें में अलिफ, 14वें में नून। ये अलामत मुज़ारे है, मुज़ारे की अलामत है ये फिजा। और आगा हुरूफ असली की जगह पे होना चाहिए मोतल। हुरूफ असली की जगह हो, ज़ाल बे है, हुरूफ असली है। मोतल जब होगा जब हुरूफ असली की जगह हर्फ इल्लत हो। जी हाँ। ठीक है, सही है और सालिम है। सही हो सालिम है। ये लाजिम है या मुताअद्दी, ज़बह ज़ैदुन शातन, ज़ैद ने बकरी को, तो इसका मतलब बकरी मफूल थी, बकरी की जरूरत पड़ी मफूल की, तो ये मुताअद्दी है, मुताअद्दी है। मालूम है या मजहूल, बहुत आसान। मालूम है, मजहूल होता तो ज़म्मा होता। ज़म्मा मा कबल आखिर पे यानी बे पे कसरा होता, इस पे उज़बिहा होता। मालूम है। और तर्जुमा क्या है इसका? अस्बाहु, मैं ज़बह करता हूँ, मैं ज़िब करता हूँ। हो गई 8 चीजें। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई 8 चीजें। कुछ देखिए 1-2 बार में याद हो जाता है। ये चीजें हमें किसी भी फेल का तज्जिया करने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है। कितने खानों की जरूरत पड़ती है? 10 खानों की जरूरत पड़ती है। 8 ये, एक ये 9, और एक कौन सी आयत कौन सा सूरत का, ये वो तो चलो छोड़ो, इतना अहम नहीं है। ये चीजें किसी भी उसका तज्जिया करने के लिए जरूरत पड़ती है। अगर 9 चीजें जरूरी है इसमें, 8 जरूरी है। तो खुद ब खुद तुम्हें आपको बताया गई सामने वाला कि इसका तज्जिया कीजिए जी। अब आइए, अब देखिए अस्बाहु की जगह मैं लगा दूं युहासबु, युहासबु,
युहासबु जी, युहासबु बताइए कौन सा फेल है? फेल मुजारे। कौन सा फेल है? फेल सीगा कौन सा है? हासबा जी, दूसरा युहा पहला सीगा है। वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुज़क्कर गायब, यानी यहाँ लिख दीजिए पहला सीगा। फेल सीगा बाब कौन सा है? फाअला हासबा युहासिबु युहासबा, हासबा युहासिबु युहासबा, फाअला युफाइलु मुफाअला, बाबे मुफाअला। हुरूफ असली क्या है? हासब, है सीन पे, देखिए फाअला युफा, तो फे ऐन लाम, यानी हे है एक असलिया, सीन है एक असलिया और बे है एक असलिया, तो हे सीन बे, हे सीन बे हुरूफ असली, ऐसे नहीं लिखना है, हे सीन बे, हे सीन बे, यही है जी, हुरूफ असली है। चार चीजें हो गई, 1 2 3 4। अब बताइए मालूम है या लाजिम, मालूम है या पहले वो बता दें, लाजिम है या मुताअद्दी। हासबा ज़ैदुन नफ्सहू, ज़ैद ने अपने नफ्स का मुहासिबा किया, तो इसका मतलब नफ्स उसका मफूल हुआ, मफूल की जरूरत पड़ी, तो जिसे मफूल की जरूरत हो वो क्या होता है? अब बताइए कौन बताएगा लाजिम है या मुताअद्दी? बता दिया। मालूम है या मजहूल, ये कौन बताएगा? जी मजहूल है। क्या बताया? मजहूल मजहूल है। बाबे मुफाअला का माज़ी मुज़ारे मस्दर की नाम पढ़ो। बाबे मुफाअला का माज़ी मुज़ारे मस्दर फाअला युफाइलु, ये क्या है? युफाअलु है ये। आखिरी वाले से पहले से अपने आखिर को बता दीजिए और उससे पहले जितने मुताअद्दिद हर्फ है तो नहीं, और अलामत मुज़ारे पे दम्मा दीजिए। मुज़ारे मजहूल बनाने का तरीका यही तो है, मा क़ब्ल आखिर को फतह ना हो फतह दे दीजिए और अलामत मुज़ारे को दम्मा दे दीजिए। अलामत मुज़ारे पे अगर दम्मा है तो ठीक, नहीं तो दीजिए। यहाँ पे था अलामत मुज़ारे पे दम्मा, बाबे मुफ़ाअला में मा क़ब्ल आखिर को फतह दे दिया, तो क्या हुआ? ये मजहूल हुआ नहीं हुआ? जी आगा मजहूल। इसका मतलब आप लोगों से मालूम मजहूल पहले माजी और मुज़ारे का मजहूल बनाने का तरीका नहीं मालूम। माजी को मजहूल बनाने का तरीका क्या है? आगा आप उससे पहले वाले को कसरा देंगे और उससे पहले जितने भी हरकत है उन पे दम्मा देंगे। जी जी जी। अरे माजी मजहूल बनाने का तरीका पूछ रहा हूँ, ये तो मुज़ारे है। माजी में अलामत मुज़ारे तेरे घर होती है कमबख्त। फेले माजी का मजहूल बनाने का तरीका पूछ रहा हूँ, क्या है माजी मजहूल बनाने का तरीका? फिर क्या आखिरी वाले हर्फ से पहले वाले हर्फ को कसरा देंगे और उससे पहले ज़िल्ली में मुताल्लिक़ क्रम को समान इस सन सा माजी है, मा क़ब्ल आखिर सवाल है, आखिर से पहले वाला उसे कसरा देंगे और उससे पहले जितने मुताअद्दिद हर्फ है उसको दम्मा देंगे। उस तुम से बन गया माजी मजहूल। और यही अगर नसरा होगा, नसरा मा क़ब्ल आखिर को कसरा और जो मुताअद्दिद हर्फ है उसको बनो से। कितना आसान है। ये माजी मजहूल बनाने का तरीका है, माजी मजहूल बनाने का तरीका है। याद किए होते तो ये क्या बताऊं, इस्तनसरा यस तन से रो यन सो रो। बताइए फेल की सारी बहस तमाम करने के बाद भी मुझे मालूम और मजहूल अब बता फिर से सिखाना पड़ रहा है। ठीक है, यस्तन यस या क्या है? यस्तन
सरो क्या है, इस्तनसरा यस्तन सिरो, इस्तनसरा यस्तन सिरो ये मुजारे है, और नसरयन सुरो ये खुलासी मुजर्रद का मुजारे है। माजी मजहूर बनाने का तरीका तो बता दिया। मुजारे मजहूर बनाने का तरीका क्या है? मुजारे मजहूर बनाने का तरीका यह है कि मा क़ब्ल आखिर को फतहा देना है और हर और अलामत मुजारे को ज़म्मा, बस और कुछ नहीं। अलामत मुजारे को ज़म्मा और मा क़ब्ल आखिर को फतहा। युस्तनसरो युनसरो, हासबा युहासिबु, युहासिबु, हासबा युहासिबु था। मजहूर क्या है? मा क़ब्ल आखिर को फतहा दीजिए, अलामत मुजारे को ज़म्मा, इस पे ऑलरेडी है ही, हो गया मजहूर। इतनी आसान बातें हैं और मुझे बतानी पड़ रही है। तो ये युहासबु मजहूल है, ठीक है। लाजिम मुताल मजहूल, पहले वो बताना भूल गए यहाँ पे, चले यहाँ बता दीजिए। सही है या मुताल है, सीन पे सही है, सीन पे सही है और सालिम भी है ये, क्योंकि ना तो मुदाफ है और ना ही महमूद है। अब तर्जुमा बता दीजिए। युहासबो हिसाब किया गया वो एक मर्द, तर्जुमा मजहूल है ना। युहासिबु वो हिसाब करता है, युहासबो उसका हिसाब किया जाता है। कितनी चीजें हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गई? फिजा अस्मा, जी आगा। गुलचा सकीना साजिद कमबख्त, समझ गया नहीं? कितनी तुझे समझाते रहते हो, तुझे समझ के नहीं दे रहा है। अब आगे देखिए, कोई एक फेल की और प्रैक्टिस कराऊं आपको, इसी में फंस के रह गए आपको। कोई एक और फेल निकालते हैं जी। सा तो गुला गुल, तो ला सतो गुला गुना, 8 चीजें बता दीजिए, बताइए। सतो गुला गुना, सतो गुला गुना माजी है मुजारे? मुजारे, माजी है या मुजारे? साजिद कैसे, पर कैसे मुजारे? इसी बताओ, डाउट में पड़ गए। अलामत मुजारे ये रही और जमा का वाव ये रहा और नुनैरा भी ये रहा, इस वजह से मुजारे। सतुगलबून फेले मुजारे। सीगा, सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर यानी 9वां सीगा। युगलबो युगलबाने युगलबूना, तुगलबो तुगलबाने युगलबना, तुगलबो तुगलबाने तुगलबूना, 9वां सीगा है। बाप कौन सा है? गलबा या लेबो, फ़अला या फ़अलो, फ़अला या फ़अलो, फ़अला या फ़अलो। हुरूफ असली क्या है? गैर लाम बे। गलबा यग़लिबु, गलबा यग़लिबु, यग़लिबु, ठीक है। हुरूफ असली हो गए। अब बताइए, हुरूफ असली भी बता दिए, उसके बाद बताओ सही है या मुअतल गैर लाम बे? सही है, सही भी है और ऊपर से सालिम भी है, क्योंकि ना तो मुज़ाफ है ना महमूद। अब बताओ मालूम है या मजहूल? साजिद मालूम है या? पहले मुजारे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पहले मुजारे है। जी जी अभी बताएंगे। मालूम है या मजहूल है? चराग मालूम है या मजहूल? गुलाम अली मजहूल है। क्यों मजहूल है? मा क़ब्ल आखिर इसमें क्या है? लाम, क्योंकि हर्फ असली बे असली ये है, क्योंकि वहां तो जमा का है और ये एराब का है। मा क़ब्ल आखिर लाम है, उसमें पता है और अलामत मुज़ारे पे ज़म्मा है, मजहूल है ये मुज़ारे मजहूल है। अभी बताया मैंने गलबा यग़लिबु, यानी देख सकते हैं गलबा यग़लिबु
मालूम ये है गलबा यगलिबो, और ये युगलबो तुगलबो, मजहूल है, ये मजहूल है। ठीक है, लाजिम है या मुताद्दी? जाहिर सी बात है मुताद्दी होगा जब तो मजहूल बना। समझ रही है सकीना? नहीं फिजा अस्मा। मजहूल बनाने के लिए शर्त, मजहूल बनाने की शर्त क्या है कि फाइल को हटाकर मफूल को उसकी जगह रखते हैं। फाइल को हटाकर मफूल को, तो इसका मतलब मफूल, इस मजहूल बना हुआ दिख रहा है, इसका मतलब मफूल था, जब तो फाइल हटा के रख के इसे मजहूल किया गया है, इसका मतलब मुताद्दी है। इसका मतलब मुताद्दी है। और उसके बाद भाई अगर आप कोई फेल मजहूल देखें तो इधर आधर जाने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद फौरन कह दो जी मुताद्दी है। क्यों? क्योंकि मजहूल में शर्त ही है कि फाइल हट जाता है, मफूल को फाइल की जगह नए में फाइल बना के रख देते हैं। तो मफूल है जो, और जिसका मफूल हो वो मुताद्दी होता है। आपको ये पता ही है? नहीं समझ पाया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मुझे फातिमा, सकीना, फिजा, अस्मा, आ गया। कितना आसान सी बात है। अगर आपको कोई फेल मजहूल दिखाई दे, कोई फेल मजहूल दिखाई दे तो आंखें बंद करके कह दो मुताद्दी है। जी आ गया। क्यों? क्योंकि मुताद्दी को मफूल की जरूरत होती है। मजहूल बनाने के लिए फेल का मुताद्दी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मजहूल जब भी होता है कि मफूल को फाइल की जगह रखा जाता है। हो गया सब 8 चीजें। अब सकीना आप कह रहे थी मुजारे समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखिए फेल मुजारे के ऊपर सीन या सोफा लगा दो तो फेल मुजारे में 2 ज़माने पाए जाते हैं। नहीं भूल गई आप ये वाली बहस? हाँ ये कहते याद आ गया। हादा मुस्तकबिल का फेल मुजारे की खुसूसियात याद है जी। अगर लाम मफ्तूहा बढ़ा लगा दे तो फकत हाल के माना देगा, सीन या सोफा बढ़ा दे तो मुस्तकबिल के फकत माना देगा। सीन मुस्तकबिल करीब और सोफा मुस्तकबिल करीब। सतुगलबूना अन करीब, उन पे गलबा किया जाएगा। अन करीब उन पे गलबा किया जाएगा। आवाज तक आ रही है सकीना शायद आपके माइक से। समझ गए? सीन और सोफा वाली बहस याद आ गई मुजारे की खुसूसियात में कि एक खासियत को तोड़ने के लिए क्या किया था। अगर इसमें दो ज़माने पाए जाते हैं, हाल और मुस्तकबिल एक ही वक्त में, आप फकत हाल के माना देना चाहते हैं तो क्या करें? लाम बढ़ा दीजिए मफ्तूहा। और अगर नहीं मुझे हाल नहीं फकत मुस्तकबिल के माना देने हैं तो या सीन बढ़ा दीजिए या में से है सनुकरे का फला तंसा भले सनुकरे का फला तंसा। सतुगलबून यानी अनकरीब के माना देता है सीन और सोफा मुस्तकबिल बईद के। तो यह सतुगलबूना अनकरीब, तुम पर गलबा किया जाएगा। समझ में आया नहीं? जी फिजा है, अस्मा है आगाम। जी अभी देखिए आज का सारा दर्स आप लोग मुझे तज्जिए पे लिखवाएंगे। जुल जे लत, जुल जे लत, जुल जे लत कौन सा फेल है ये? शक में क्यों है? माजी में आती तायद मुन्नस, शक में क्यों है? मुजारे में थोड़ी ता साकिन आती है। फेले माजी, फेले माजी। ठीक है, कौन सा सीगा है ये? आके बंद करके बता दो। ताय साकिना मुन्नस के अलावा चौथे सीगे में आती है। वाहिद मुन्नस गायब, चौथा सीगा है। आके बंद करके कह दीजिए जुलजलत ते है साकिन, तो ये मुन्नस के चौथा सीगे में आती है। ठीक है, चौथा सीगा हो गया। बाप बताना है फेल कौन सा है, सीगा कौन सा है, बाप कौन सा है? जलजला युजलजिलो, जलजला युजलजिलो। रुबाई है या फअलला युफअलिलु, फअलला युफअलिलु, युफअलिलु कौन सा बाब है? फअलला युफअलिलु। रुबाई मुजर्रद, रुबाई मुजर्रद, यही लिखना था। बाबे, बाप का नाम क्या है? फअलला युफअलिलु, फअललतुन, फअलला युफअलिलु, फअललतुन, फअललतुन,
बाब फ़अलला है, बाब फ़अलला, ठीक है। सीगा बता दिया, बाब बता दिया। हुरूफ असली क्या है, कौन बताएगा? जाल लाम जाल लाम जाल तो है ही नहीं इसमें, जे जे लाम जे लाम जे लाम और रे। जे लाम। भाई रुबाई मुजर्रद अगर आप कह रहे हैं यानी जिसमें 4 हर्फ असली हैं, जी जे लाम 4 हर्फ असली हैं, जे लाम जी जी जी। अब बताइए 1 2 3 4, अब बताना क्या है जी? सही और सालिम। सही और सालिम। जे लाम सही है नहीं, जी क्योंकि हर्फ इल्लत नहीं आता असली में। सही भी है, सालिम क्यों है? क्योंकि ना हमजा है ना दो हर्फ एक जैसे एक जगह है, सही वो सालिम है। आप बताइए मालूम है या मजहूल? मालूम अभी बताया दाहर फ़अलला युफ़अलिलो, दाहरजा युदाहरिजो, ज़लज़ला युज़लज़िलो। तो ज़लज़ला ज़े पे ज़बर है फ़ाउल फ़ेल पे, बाब मुफ़अला में, बाब फ़अललतुन में। तो आपको लाम नहीं दिख रहा आखिरी हाथ, मा क़ब्ल आखिर पे कसरा, उससे पहले जो मुतहर्रिक हर्फ है उस पे ज़म्मा नहीं दिख रहा। ज़लज़ला ज़लज़ला ज़लज़लू ज़लज़लत ज़लज़लत होता मालूम। ये क्या है? ज़ुलज़िला ज़ुलज़िला ज़ुलज़िलू ज़ुलज़िलत मजहूल है। इतना क्यों भूल जा रहा है मजहूल का, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जबकि मालूम है ना? हाँ मजहूल है ये, मा क़ब्ल आखिर पे कसरा है नहीं, ज़े पे देखिए, और उससे पहले मुतारिक लाम पे पता है ना। अरे मा क़ब्ल आखिर लाम थोड़ा ही है, ये तो ते मुअन्नस की अलामत है, आखिर ये है। ओ जी 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 ये ते तो मुअन्नस की अलामत है, आखिरी हर्फ ये है लाम, देख रही हैं ज़ेलाम जी जी आखिरी हर्फ ये है। तो मा क़ब्ल आखिर ज़े हुई, ज़े पे कसरा है, उससे पहले मुतहर्रिक हर्फ पे ज़म्मा है, मजहूल है। अब मजहूल है तो आंखें बंद करके कह दो मुताद्दी है। क्यों? क्योंकि मजहूल के लिए मुताद्दी होना शर्त है, ठीक है। मजहूल मुताद्दी, आप तर्जुमा लिख दीजिए मिसाल के तौर पर, ठीक है। क्या तर्जुमा लिखेंगे ज़ुलज़िलत का? कहाँ गया, मैंने कहाँ से निकाला था? हाँ, हिलाई गई। जादल तुम बताइए मासी है मुजारे? साजिद बताइए। हाँ मासी है। साजिद जादल तुम फेले माजी है। फेले बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आंखें बंद करके आदमी बता दे। जब तुम तुमा तुम ता तुम दिए ता तुमा तुम ते तुमा तुम ना माजी में आता है, छूटते ही कह दो। फेल कोई मजबूर नजर आए फौरन आंखें बंद करके कह दो मुताद्दी, क्योंकि मुताद्दी लाजिम से नहीं बनता, वो मुताद्दी से ही बनता है मजबूर। अगर हो तो अगर बना हुआ है मजबूर तो इसका मतलब वो लाजिम नहीं है, मुताद्दी है, फेल माजी है। सीगा क्या है जी? जमा मुज़क्कर नहीं बोलेगा कोई। हाँ जी। जमा मुज़क्कर हाज़िर नौवा सीगा है। जादला जादला जादलू जादलत जादलता जादलना जादलता जादलतुमा जादलतुम नौवा सीगा है। जादलतुम जादलते जादलतुमा जादलतुन्ना जादलतो जादलू जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है, ठीक है। जादलतुम सीगा नंबर बता दिया। फेल सीगा बाब जादला युजादिलो मुजादला जादला युजादिलो मुजादला जादला युजादिलो मुजादला यानी बाबे मुफ़ाअला बाबे मुफ़ाअला है ये। अब तीन चीज, चौथा क्या बताया था? हुरूफे असली जादला युजादिलो जादला जादला युजादिलो मुजादला। कौन से हुरूफे असली? जीम मजीद है ना, तो यानी तीन हर्फ असली है, जीम दाल लाम जदल, उसी में अलिफ जा दा दा यू जा दिल, ठीक है।
बाब मुफाला है, हुरूफ असली है। अब बताना है क्या जी सही है या जीम दाल लाम सही है, वो हर्फ इल्लत नहीं है हर्फ असली में, हर्फ असली में हर्फ इल्लत नहीं है, और ये सालिम भी है क्योंकि ना तो महमूज है ना ही मुताअब। और क्या है ये मालूम है या मजहूल? नहीं लाजिम है या मुताअद्दी? मुताअद्दी है, जादला फलाना फलाना, ठीक है। जादला जी मुशारकत के माना पाए जाते हैं नहीं बाब मुफाला में, दो का एक शरीक होना, भले मुताअद्दी। और मालूम है या मजहूल? मजहूल। मालूम है, किसने कहा मजहूल? मजहूल होता तो जी दाल पे कसरा होता और इस पे जम्मा होता। मजहूल का तरीका को आप लोग मजहूल का माजी मजहूल और मुजारे मजहूल का इस तरीके से आपको याद होना चाहिए कि बेखबर सोते हुए भी आपको यूं करके पूछा जाए बताओ ये लाजिम है मुताद्दी, फौरन का मुताद्दी क्यों? क्योंकि अगर लाजिम वो मालूम है या मजहूल, वो मालूम है, मजहूल होता तो इस पे जम्मा होता, माक़ब्ल आखिर पे कसरा होता माजी मजहूल में, और अगर मुजारे मजहूल होता तो माक़ब्ल आखिर पे फतह और अलामत मुजारे पे जम्मा होता। कितनी आसान बात है, कितनी आसान बात है। माक़ब्ल आखिर पे कसरा और उससे पहले सब हरकत वाले हर्फ पर जम्मा हो तो माजी मजहूल, माक़ब्ल आखिर पे फतह और अलामत मुजारे पे जम्मा हो तो मुजारे मजहूल। कितना आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 और तर्जुमा। तर्जुमा जादल तुमने जिदाल किया, तुमने जिदाल किया। समझ में आ गया या नहीं? अब इतने मैंने प्रैक्टिस करा दी, इतने हैं। जबकि ये आपका दीन, आपका मजहब, आपका मकसद, आपकी जिम्मेदारी का ये तकाजा होना चाहिए था, तकाजा था कि आप खुद करते हैं। और आज मुझे आके आप लोग कहते कि हमने इतने दिन में 50 फेल का तज्जिया करके प्रैक्टिस कर ली, आप सिर्फ फेल लिखिए, तज्जिया हम करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अब मैंने एक बकदर काफ़ी आपको तज्जिया सिखा दिया है। 8 सुकून क्या है, 8 खाने क्या है, किसी भी फेल का तज्जिया करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। समझ गए आप लोग या नहीं? और जी इन्होंने क्या किया है, देखिए आपके नमूने के लिए 10 अफ़आल ऐसे करके तज्जिया करके दिखा भी दिए हैं, 10 अफ़आल तज्जिया करके दिखा भी दिए हैं। जब 10 फेल किसी चीज़ का काम करके दिखा दिया जाए 10 मरतबा तो फिर याद ना हो तो कैसे मुमकिन है याद नहीं हो? सिर्फ यही कि आदमी तवज्जो ना दे, असलन किताब ही उठा के ना देखे। लिहाजा कल इंशाअल्लाह हम, क्योंकि तज्जिए की फेल के तज्जिए की बहस और फेल की पूरी बहस तमाम हो गई, कल इंशाअल्लाह क्या करेंगे, इस्म की बहस शुरू करेंगे, इस्म की गुफ्तगू शुरू होगी। देखिए लिखा हुआ है अक़साम इस्म, जो इस्म की 6 तक़सीमात गिनाई थी नहीं, इस्म हुरूफ असली के एतबार से एक तक़सीम है, या सुलासी होता है या रुबाई खुमासी, इस्म या मस्दर होता है या गैर मस्दर, इस्म जामिद होता है या मुश्तक़, इस्म मुज़क्कर होता है या मुअन्नस, इस्म मुतसर्रिफ होता है या गैर मुतसर्रिफ, इस्म मारफा होता है या नकरा। 6 तक़सीमात हैं, ये एक एक करके गिनाएंगे और फिर आखिर में इस्म का तज्जिया करना सिखाएंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।